Good morning, guys. Today is Sunday. I was thinking to do something with poetry and recite a poetry and wanted to explain a nostalgic one, a nostalgic poetry. So I came across Childhood, that is written by Marcus Natin, and this is also included in the syllabus of CBSE class 11th. So let's get started, and I will be explaining each and every word, and after the finishing of this poetry I will be explaining the literary devices which are used in this poem. So with this journey of nostalgia, we will go back to our own childhood time when everything was just marvelous, carefree nature we used to be now also, but still that phase of time was so memorable that we are so enthusiastic to do whatever we wanted to do at that point of time. We did, and with same energy we will begin our journey with this poem. Fine, so let's get started. Childhood written by मार्कस नैटिन। चाइल्डहुड का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हमें ये जानना है। चाइल्डहुड का मतलब होता है कि बचपन, ठीक है, जब हम छोटे थे। लिखा किसने है? मार्कस नैटिन ने लिखा है। तो पहला जो स्टैंजा है इसमें लिखा है, When did my childhood go? Was it the day I ceased to be 11? Was it the time I realized that heaven could not be found in geography, and thereafter could not be? Was that the day? When did my childhood go? Was it the time I realized that adults were not all they seemed to be? They talked of love and preached of love and did not act so lovingly. Was that the day? When did my childhood go? Was it when I found my mind was really mine, to use whichever way I chose, producing thoughts that were not those of other people, but my own and mine alone? Was that the day? Where did my childhood go? It went to some forgotten place that's hidden in an infant's face. That's all I know. So with this we completed the poem. Poem is completed. We got some idea very naturally about Marcus's own childhood. He has become an adult person, but he is longing for the carefree days that used to be once upon a time when he was himself a child. What are the features of a child? How do you differentiate between an adult and a child? What do you think in this regard? Your perspective is more engaging than what I am going to explain. We should have some. You should have some. You should have some points of your own. So the first one, the first line of this poetry is, when did my childhood go? The poet is asking, where did my, when did my childhood go? कब मेरा childhood चला गया? Was it the day I ceased to be 11? जब मैं 11 साल का हो रहा था तब क्या ये चला गया? Ceased का मतलब ख़त्म हो जाना, stop हो जाना. Was it the time I realized that hell and heaven? क्या मेरा चाइल्डहुड उस समय चला गया, बचपन उस समय चला गया जब मेरे को ये समझ में आया कि क्या डिफरेंस होता है
हेल और हेवन के बीच, हेल का मतलब नर्क और हेवन का मतलब जन्नत। क्या उस समय मेरे को समझ में आया? कुड नॉट बी फाउंड इन जोग्राफी। मेरे को हेल और हेवन तो कहीं नहीं मिला, ना ही जोग्राफी में मिला और ना ही और कहीं। एंड देयरफॉर कुड नॉट बी वॉज दैट द डे। और मेरे को ये और कहीं नहीं मिला। क्या मेरा ऐसे ही चाइल्डहुड चला गया? When did my childhood go? दोबारा से पोइट इज आस्किंग कि उन कहाँ चला गया चाइल्डहुड। Was it the time I realized that adults were not all they seem to be? ये क्या उस समय की बात है जब एडल्ट्स उस समय की बात है जब पोइट को खुद को समझ में आया कि एडल्ट्स जो कि बड़े बड़े जन होते हैं, वो जो दिखाते हैं वो असलियत में है नहीं। जो बोलते हैं और जो करते हैं दोनों में डिफ्रेंसिएशन होता है, अलग होता है। दे टॉक्ड ऑफ लव एंड प्रेज्ड ऑफ लव। वो प्यार भरी बातें तो करते हैं और बहुत मॉरल लेक्चरिंग भी देते हैं, मगर असलियत में क्या वो वैसे ही होते हैं? ये पोइट पूछ रहा है। बट डिड नॉट एक्ट सो लविंगली। मगर जब हरकतें करने की बारी होती है, जब वो एक्टिविटी कोई करते हैं तो उसको तो वो ये नहीं इम्प्लाई करता, वो ये नहीं सिग्निफाई नहीं करता कि वो बहुत प्यार भरे हैं और रेस्पेक्टफुल हैं। रेस्पेक्टफुल नहीं कह सकता, लवेबल हैं। लवेबल एक्ट्स नहीं दिखाई देते। ओके, वॉज दैट द डे? वॉज दैट द डे? क्या उस समय ये चला गया? चाइल्डहुड। व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो? कब मेरा चाइल्डहुड चला गया? वॉज इट व्हेन आई फाउंड माई माइंड वॉज रियली माइंड? क्या वो उस समय चला गया जब मेरे को लगा कि मैं अपना जजमेंट खुद ले सकता हूँ, क्या सही है और क्या गलत है, मेरे को ये समझ आ गई थी? क्या उस समय ये जो समझदार मैं जब हो गया था उस समय चला गया? टू यूज़ विच एवर वे आई चूज़। मेरे को जहाँ मर्जी जाना है, कोई पेरेंटल रोक टोक नहीं, कोई एडवाइस नहीं, कोई कुछ नहीं। मैं अपनी मर्ज़ी का खुद मालिक हूँ। जब इस स्टेज पर मैं पहुँच गया, क्या उस समय मेरा बचपन चला गया? प्रोड्यूसिंग थॉट्स दैट वर नॉट दोज ऑफ अदर पीपल बट माई ओन। प्रोड्यूसिंग थॉट्स दैट वर नॉट दोज ऑफ अदर पीपल बट माई ओन। जब मेरे अपने विचार होने लगे, तब क्या वो समय था जब चाइल्डहुड मेरे से चला गया? वॉज दैट द डे? क्या वो समय था? वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो? कहाँ गया मेरा चाइल्डहुड? मेरा बचपन कहाँ गया? इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस। क्या ये फॉरगॉटन प्लेस में चला गया? फॉरगॉटन प्लेस मतलब भूला हुआ कोई जगह, गुमनाम जगह में चला गया। दैट्स हिडन इन एन इन्फेंट्स फेस। मगर जब भी मैं किसी बच्चे की सूरत देखता हूँ तो उस समय मेरे को अपनी बचपन की यादें आ जाती है। दैट्स ऑल आई नो। बस मेरे को यही मालूम है। तो इसी के साथ ये पोएम ख़त्म होता है। तो मैं कुछ आपको लिटरेरी डिवाइसेस बता देता हूँ, मैंने खुद लिखा है, और राइमिंग स्कीम भी मैं डिस्कस कर देता हूँ आपके साथ। सबसे पहले मैं आपको राइमिंग स्कीम बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले यहाँ पे क्या, फर्स्ट लाइन में, फर्स्ट स्टैंजा फर्स्ट लाइन, व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो। यहाँ पे गो है, गो ए आ जाएगा। उसके बाद देखो 11 हेवन, ये मैच करते हैं, राइमिंग वर्ड हैं ये दोनों, तो ये बी, बी बी, ए बी बी। फिर जोग्राफी, उसके बाद बी, तो उसके बाद जोग्राफी क्या होगा, सी हो जाएगा, और बी जो है वो भी सी हो जाएगा, और डे जो है वो डी हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से। और सेकंड स्टैंजा में देखो, फर्स्ट लाइन, व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, यहाँ पे भी आ जाएगा आपका ए। उसके बाद सॉरी, सेकंड स्टैंजा नहीं, लास्ट स्टैंजा। तो लास्ट स्टैंजा में क्या है, वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो, तो यहाँ पे भी आ जाएगा ए।
उसके बाद देखो प्लेस, ये आ जाएगा बी, फेस ये भी आ जाएगा बी, और नो ये आ जाएगा ए। तो इसी के साथ राइमिंग स्कीम जो है ये ख़त्म होता है। अब मैं बात करता हूँ कुछ लिटरेरी डिवाइसेस जो कि इसमें यूज़ हुए हैं। सबसे पहले देखो रैशनलिज्म के बारे में हम बात करते हैं, जो कि स्टैंजा फर्स्ट में लिखा हुआ है। रैशनलिज्म का मतलब क्या होता है? व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, मतलब रैशनलिज्म का मतलब ये होता है कि आप जब रैशनलाइज करते हो कोई आइडियाज़ को, समझते हो, प्रैक्टिकल वे में समझते हो अपने आप को या कोई भी आपके आसपास की चीज़ें हैं उसको रैशनल वे से समझते हो, प्रैक्टिकल वे में समझते हो। तो यहाँ पे पहला क्या है वर्ड? व्हेन है, ठीक है। और ये सेंटेंस क्या है? व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो। ये बार बार देखो यूज़ हुआ है, ये फ्रेज़ जो है बार बार यूज़ हुआ है, फर्स्ट स्टैंजा में, सेकंड स्टैंजा में, थर्ड स्टैंजा में, फोर्थ स्टैंजा में, लगातार फर्स्ट लाइन में। तो इसको हम कहेंगे रैशनलिज्म, ठीक है। बार बार यूज़ होना एक सेंटेंस का, तो उसको हम कहेंगे रैशनलिज्म। और बार बार वो पूछ रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि कहाँ गया मेरा चाइल्डहुड, मतलब वो इंक्वायरी करता है, ठीक है। तो उसको हम रैशनलिज्म कहेंगे। अब देखो स्टैंजा थर्ड, इसमें क्या है? स्टैंजा थर्ड में इसमें हम देख सकते हैं लिटरेरी डिवाइसेस का यूज़ हुआ है, वो है इंडिविजुअलिटी। इंडिविजुअलिटी का मतलब क्या होता है? यूज़ ऑफ वंस माइंड टू प्रोड्यूस ओन थॉट। कवि अपना माइंड यूज़ करता है ये जानने के लिए कि क्या सही है क्या गलत है, उसको अपना जो अस्तित्व है उसका वैल्यू समझ में आता है। कैसे? थर्ड स्टैंजा में कैसे हम कह सकते हैं? जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, वॉज इट व्हेन आई फाउंड माइंड, माइंड वॉज रियली माइंड। जब चाइल्डहुड कब गया? क्या उस समय गया जब मैं समझदार बन गया। मैं बार बार इसका प्रयोग हो रहा है। मेरा अस्तित्व, मेरा क्या इम्पोर्टेंस है इस दुनिया में, तो यूज़ क्या हम कर रहे हैं? मैं, आई। टू यूज़ विच एवर वे आई चूज़, कहीं पे भी मेरे को चूज़ करना है तो मैं खुद करूँगा। कोई मेरे को आके एडवाइस देगा कि तुम्हें ये करना है कि तुम्हें ये नहीं करना है, उसका मैं सपोर्ट नहीं करता। जो मेरे को खुद को लगता है कि ये सही है, मैं उसको चूज़ करूँगा। प्रोड्यूसिंग थॉट्स दैट वर नॉट दोज ऑफ अदर पीपल बट माई ओन। क्या उस समय मेरा बचपन चला गया जब जो थॉट्स आने लगे, विचार आने लगे, क्या सही है क्या गलत है, वो मेरे अपने थे। किसी ने मेरे को पाठ पढ़ाया और मैं इसे सीखा, फिर मैंने बोला कि ये ऐसा नहीं है। जो मेरे को लगा सही है वो मैंने बोला सही है, उसको मैंने चूज़ किया। एंड माइंड अलोन, मेरा ही खुद का। तो यहाँ पे इंडिविजुअलिटी की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिटरेरी डिवाइस अप्लाई होगा। उसके बाद देखो एंटीथीसिस का भी यहाँ पे प्रयोग है। कहाँ पे? फर्स्ट स्टैंजा में आ जाओ, थर्ड लाइन में, हेल एंड हेवन, जो लास्ट 2 वर्ड्स हैं तीसरे सेंटेंस का, हेल एंड हेवन। इसमें हम क्या यूज़ कर सकते, इसमें हम क्या देख सकते हैं? एंटीथीसिस का क्या है यूज़ है? एंटीथीसिस का मतलब दो कोई भी शब्द जो कि आपस में लिखे हुए हो मगर उनका विपरीत अर्थ है, पूर्ण रूप से विपरीत अर्थ है, अलग अर्थ है, उल्टा अलग अर्थ है, ठीक है। उसे हम कहते हैं एंटीथीसिस। जैसे हेल मतलब नर्क और हेवन मतलब स्वर्ग। ओके, उसके बाद देखते हैं एंटीथीसिस हो गया। अब चलते हैं एलिट्रेशन में। एलिट्रेशन क्या है? एलिट्रेशन है द ऑक्यूरेंस ऑफ द सेम लेटर ऑफ क्लोजली कनेक्टेड वर्ड्स। मतलब जो कॉन्सोनेंट अल्फ़ाबेट्स रहेंगे वो दोनों शब्दों में सबसे पहले रहेंगे। पहला अल्फ़ाबेट कॉन्सोनेंट रहेगा और उसकी साउंड भी आएगी। जैसे फर्स्ट स्टैंजा में आप देख सकते हो द टाइम, सेकंड स्टैंजा में थर्ड स्टैंजा में आप देख सकते हो माई माइंड, एम हो गया, माई माइंड में एम, द टाइम में टी, फिर है विच एवर वे, डब्ल्यू, ये फोर्थ स्टैंजा में है। और फिर लास्ट स्टैंजा में आप देख सकते हो थॉट्स दैट, तो यहाँ पे टी। तो ये सारे क्या है? कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं। तो जब आपस में ऐसे वर्ड्स हमें देखने को मिलेंगे तो उसको क्या कहेंगे? एलिट्रेशन। फाइन। अब देखते हैं एनाफोरा। क्या? एनाफोरा,
ANAPHORA। एनाफोरा का मतलब होता है कि रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स इन द बिगनिंग ऑफ 2 or more लाइन्स। एक ही या मान लो कुछ वर्ड्स आपस में बार बार रिपीट हो रहे हों शुरुआत में। जैसे फर्स्ट स्टैंजा में आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है, वॉज इट द डे, वॉज इट द डे आई सीज टू बी 11। तो यहाँ पे वॉज इट द डे, वॉज इट द, इतना सा। और दोबारा से देखो फर्स्ट स्टैंजा में थर्ड लाइन, वॉज इट द टाइम आई रियलाइज्ड दैट हेल एंड हेवन। तो इसमें दोबारा से वॉज इट द, वॉज इट द, वॉज इट द बार बार रिपीट हो रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, एनाफोरा कहेंगे। और मैं आपको और एक लिटरेरी डिवाइस यहाँ पे मार्क करवाना चाहूँगा। थर्ड स्टैंजा में फोर्थ जो लाइन है, प्रोड्यूसिंग थॉट्स दैट वर नॉट दोज ऑफ अदर पीपल बट माई ओन। तो पीपल के बाद देखो ये एक लाइन ख़त्म होता है ना, एक लाइन ख़त्म होता है, मगर यहाँ पे कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है। तो जहाँ पे पंक्चुएशन मार्क नहीं होता है तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, मतलब क्या कहते हैं इस प्रकार के लाइंस को जहाँ पे पंक्चुएशन मार्क यूज़ ना होता हो, इनजैम्पमेंट कहते हैं, इनजैम्पमेंट कहते हैं। तो यहाँ पे और एक लिटरेरी डिवाइस हम कह सकते हैं इनजैम्पमेंट। और इसी के साथ ये जो पोएम है ये ख़त्म होता है। आई होप मैं आपको समझा पाया हूँ। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप ज़रूर पूछना। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।